بسم الله الرحمن الرحيم. Today we will discuss English grammar topic number 5, kinds of adjective. First we will discuss what is adjective. An adjective is a word used to add to the meaning of a noun or pronoun. Adjective क्या करता है? जो noun और pronoun होते हैं उनके meanings के अंदर इजाफा करता है, उनकी खुसूसियत को जाहिर करता है. It describes or points out a noun or a pronoun. वो noun या pronoun को describe करता है. Examples: Sana is a pretty girl. अब Sana क्या है? यहाँ पे noun है और pretty क्या है? उसकी खुसूसियत बता रहा है कि वो कैसी लड़की है, pretty girl है. तो pretty यहाँ पे क्या हो गया? Adjective. Ali is lazy boy. अली क्या है? नाउन है और लेजी जो है वो अली की खुसूसियत बता रहा है कि वो कैसा लड़का है? लेजी है. तो लेजी क्या हो गया? एडजेक्टिव. अहमद इज़ अ पाकिस्तानी. अब अहमद नाउन है और पाकिस्तानी क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि वो अहमद की क्वालिटी को बता रहा है कि वो क्या है? पाकिस्तानी. In sentence number 1, Sana is a noun and pretty is an adjective as it describes the quality of noun. In sentence number 2, Ali is a noun and lazy is an adjective as it describes the quality of noun. In sentence number 3, Ahmad is a noun and Pakistani is an adjective as it describes the quality of noun. Now kinds of adjective. Kinds of adjective के अंदर जो है आते हैं descriptive adjective, quantitative adjective, proper adjective, demonstrative adjective, possessive adjective, interrogative adjective, indefinite adjective, article और compound adjective. अब हम इसको जो है आगे फर्दर बारी बारी हर एक को देखेंगे. First, descriptive adjective. A descriptive adjective is a word which describes a noun and pronoun. ये ऐसे adjective है जो noun या pronoun को describe करता है. Most of the adjective belongs in this type. जो ज़्यादातर adjective होते हैं वो कौन से होते हैं? Descriptive adjective. These adjectives provide information and attributes to the noun, pronouns they modify or describe. ये क्या करते हैं? ये noun या pronoun के बारे में हमें information देते हैं जिसको वो describe कर रहे होते हैं. Descriptive adjective are also called qualitative adjective. हम इसको दूसरा नाम देते हैं qualitative adjective क्योंकि ये किसी noun या pronoun की quality को बयान कर रहे होते हैं. Example: I have a new car. अब इधर कार क्या है? नाउन है और न्यू जो है क्या है? क्वालिटी है कि कैसी कार है? न्यू कार है. ही इज वेयरिंग अ न्यू ड्रेस. अब उसने कौन सा ड्रेस पहना है? न्यू ड्रेस. अब न्यू क्या है? क्वालिटी ऑफ ड्रेस को डिफाइन कर रहे हैं तो न्यू क्या आ गया इधर? एडजेक्टिव. ही हैज वाइट शर्ट. शर्ट कौन से कलर की है? वाइट. वाइट जो है वो क्वालिटी ऑफ शर्ट है तो वाइट क्या आ गया? एडजेक्टिव. नाउ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव. A quantitative adjective provide information about the quantity of the nouns and pronoun. ये हमें noun या pronoun की quantity के बारे में बताता है. This type belongs to the question category of how much and how many. ऐसे जो adjective होते हैं ये how much या how many वाले questions category से belong करते हैं. Example क्या है? I have $10 in my pocket. अब $10 क्या है? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव. There are 12 apples in the basket. How many apples are in the basket? आंसर क्या आएगा? There are 12 apples in the basket. Now proper adjective. Proper adjective are the adjective forms of proper noun. When proper nouns modify or describe other nouns or pronouns, they become proper adjectives. ये जो होते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव या प्रॉपर नाउन होते हैं. जब प्रॉपर नाउन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब या मॉडिफाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है? प्रॉपर एडजेक्टिव्स. प्रॉपर एडजेक्टिव आर यूजुअली कैपिटलाइज्ड एज प्रॉपर नाउन्स. और जैसे हम प्रॉपर नाउन को कैपिटल लिखते हैं तो प्रॉपर एडजेक्टिव को भी हम कैपिटल लिखते हैं. एग्जाम्पल क्या है? आई लाइक चाइनीज फूड. अब चाइनीज क्या है? चाइना से रिलेट कर रहा है. चाइनीज तो चाइना क्या है? प्रॉपर नाउन है तो चाइनीज भी क्या हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव, क्योंकि वो फूड की क्वालिटी है कि कैसा फूड है? चाइनीज फूड.
ही हैज एन ऑस्ट्रेलियन कैट। अब कैट कौन सी? ऑस्ट्रेलियन। ऑस्ट्रेलियन क्या आ गया इधर? प्रॉपर एडजेक्टिव। पाकिस्तानी पीपल आर हेल्पफुल। अब पीपल कौन से हैं? पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानी क्या आ गया? प्रॉपर एडजेक्टिव। नाउ demonstrative adjective. A demonstrative adjective directly refers to something or someone. ये किसी चीज या किसी शख्स को रेफर करता है। Demonstrative adjectives includes the word this, that, these, those. इसके अंदर जो आते हैं demonstrative adjective वो कौन से हैं? This, that, these और those. Example, these vegetables are fresh. अब वो वेजिटेबल की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये वाली जो वेजिटेबल्स हैं ये फ्रेश हैं। तो दीज के आगे इधर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दैट बुक इज माइन। कौन सी वाली बुक? अब वो बुक की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि दैट बुक इज माइन। दैट के आगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दोज गोट्स आर गुड इन हेल्थ। कौन सी गोट्स? गोट्स की तरफ पॉइंट आउट करते हुए दोज गोट्स आर गुड इन हेल्थ। दोज के आगे इधर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस पेंसिल इज माइन। अब दिस के पेंसिल की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं तो दिस यहाँ पे क्या गया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नाउ पोजेसिव एडजेक्टिव। अ पोजेसिव एडजेक्टिव इंडिकेट्स पोजेशन और ओनरशिप। ये किसी की मलकियत को जाहिर करने के लिए जो हम एडजेक्टिव यूज करते हैं वो होता है पोजेसिव एडजेक्टिव। इट सजेस्ट्स द बिलोंगिंगनेस ऑफ समथिंग टू समवन और समथिंग। ये किसी चीज की किसी जब हमने मलकियत को जाहिर करना हो तो हम यूज करते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। Some of most used possessive adjectives are my, his, her, or their, your और whose। ये most common जो possessive adjective यूज होते हैं वो हैं my, his, her, our, their, your और whose। All these adjectives always come before a noun। ये जो है possessive adjective ये क्या आते हैं? noun से पहले आते हैं। Example, his cat is very cute। अब his जो है वो क्या आ गया? पोजेसिव एडजेक्टिव। और कैट क्या है? नाउन है, तो पोजेसिव एडजेक्टिव नाउन से पहले आ गया। हिज कैट इज वेरी क्यूट। हिज यहाँ पे आ गया पोजेसिव एडजेक्टिव। आर टास्क इज ऑलमोस्ट डन। टास्क क्या है? नाउन है और आर के आगे पोजेसिव एडजेक्टिव। और जैसा कि ऊपर हमने एक्सप्लेन किया था कि पोजेसिव एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले आता है, तो आर आ गया पोजेसिव एडजेक्टिव और टास्क हो गया नाउन। माई कार गॉट एक्सीडेंट। कार क्या है? नाउन है और माई क्या आ गया इधर? पोजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि वो कार की पोजेशन को शो करे कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। नाउ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। एन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव आस्क्स अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को पूछने के लिए एडजेक्टिव्स हम यूज करते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। एन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव मस्ट बी फॉलोड बाय अ नाउन और अ प्रोनाउन। The interrogative adjectives are which, what, whose। ये जो तीन हैं ये interrogative adjective की कैटेगरी में आते हैं। Examples, which car are you going to buy। अब कार क्या है? यहाँ पे नाउन है। which क्या है? interrogative adjective है। अब हम उससे पूछे कि तुम कौन सी गाड़ी खरीदने जा रहे हो। What dress she is wearing। अब ड्रेस क्या है? नाउन है। व्हाट क्या है? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। अब हम जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। हुज बाइक इज दिस। बाइक क्या है? नाउन है और हुज जो आ गया वो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हुज क्या हो गया? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंडेफिनिट एडजेक्टिव। एन इंडेफिनिट एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और मॉडिफाई अ नाउन अनस्पेसिफिकली। जब हमारे पास अनस्पेसिफाइड कोई नाउन हो तो उसको जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो हम जो यूज करते होते हैं इंडेफिनिट एडजेक्टिव। दे प्रोवाइड इनडेफिनिट और अनस्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन। ये जो है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं देते बल्कि अनस्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देते हैं नाउन के बारे में। दे common indefinite adjectives are few, many, much, most, all, any, each, every, either, nobody, several or some, etc। ये जो लिखे हुए हैं ये कॉमन जो हम indefinite adjective यूज करते हैं ये उनकी लिस्ट है। एग्जाम्पल क्या है? डू यू हैव सम मनी। अब सम क्या है? अनस्पेसिफिक है। स्पेसिफाइड नहीं कि कितने मनी।
अब वो पूछे डू यू हैव सम मनी, अब मनी के आगे नाउन आ गया और सम के आगे इंडेफिनिट एडजेक्टिव। आई गेव सम मनी टू हर, अब इधर भी मनी कोई स्पेसिफाइड नहीं कि मैंने उसे कितने पैसे दिए, बल्कि हमने अनस्पेसिफिक लगाया है एडजेक्टिव। तो ये क्या हो गया, सम इधर आ गया इंडेफिनिट एडजेक्टिव और वो मनी को डिस्क्राइब कर रहा है, तो मनी के आ गया नाउन आ गया और सम आ गया इंडेफिनिट एडजेक्टिव। Each student will have to submit fees tomorrow. अब हमने स्टूडेंट को स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन से स्टूडेंट, हमने बल्कि इस्तेमाल किया ईच। अब ईच क्या आ गया, ईच अनस्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, तो ईच क्या गया इंडेफिनिट एडजेक्टिव और स्टूडेंट है नाउन। Now article. Article also modify the noun, so article are also adjective. आर्टिकल्स जो हैं वो नाउन को मॉडिफाई करते हैं, तो हम आर्टिकल को भी एडजेक्टिव वाली कैटेगरी में रखते हैं। आर्टिकल डिटरमिन द स्पेसिफिकेशन ऑफ नाउन्स, ये जो है नाउन की स्पेसिफिकेशन को डिटरमिन करने के लिए यूज होते हैं। आ एंड आर यूज टू रेफर टू एन अनस्पेसिफिक नाउन, जब हमारे पास नाउन स्पेसिफाइड नहीं होता तो हम यूज करते हैं आ और एन आर्टिकल। द इज यूज टू रेफर टू स्पेसिफिक नाउन, जब हमारे पास नाउन स्पेसिफाइड हो, स्पेसिफिक हो, तो हम यूज करते हैं द आर्टिकल। एग्जाम्पल, अ कैट रन्स आफ्टर द माउस, अब यह क्या है, ये जो बिल्ली है ये अनस्पेसिफिक है, तो हमने क्या यूज किया, अ कैट रन्स आफ्टर द माउस। द रूम AC is not working well. An apple is good for iron. अब जो एप्पल है वो अनस्पेसिफिक है, क्योंकि सारे एप्पल आयरन के लिए गुड होते हैं, तो हमने लिख दिया एन एप्पल इज गुड फॉर आयरन। नाउ कंपाउंड एडजेक्टिव, व्हेन कंपाउंड नाउन्स और कंबाइंड वर्ड्स मॉडिफाई अदर नाउन दे बिकम अ कंपाउंड एडजेक्टिव। जब कंपाउंड नाउन या कंबाइंड वर्ड्स जो मॉडिफाई करें दूसरे नाउन्स को, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, कंपाउंड एडजेक्टिव्स। This type of adjective usually combine more than one word into a single unit and modify a noun. ये जो एडजेक्टिव होते हैं ये एक से ज़्यादा वर्ड्स को आपस में कंबाइन करते हैं और फिर नाउन को जो है वो मॉडिफाई करते हैं। They are often separated by a hyphen or joined together by a quotation mark. Example क्या है, He has a new white car. अब न्यू वाइट क्या आ गया, कंपाउंड आ गया, कि वो न्यू भी है और कलर कौन सा है, वाइट, तो ये कंपाउंड आ गया। ही इज वियरिंग रेड वूलन कोट, अब रेड कलर को डिस्क्राइब कर रहा और वूलन जो है वो कोट को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कैसा कोट है। नाउ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। These degrees are applicable only for the descriptive adjectives. Now, positive degree of adjective. The positive degree of adjective is the simplest form of that adjective. जब simplest form हो adjective की तो वो क्या होती है, positive degree. The positive form is used in cases where there are no differences between the two compared things or person. ये हम कब यूज करते हैं, जब कोई कंपैरिजन नहीं होता है कोई किसी भी दो चीजें या शख्सों के दरमियान। To form the positive, we use the positive form of the adjective. जब हमने पॉजिटिव डिग्री बनानी होती है तो हम क्या यूज करते हैं, पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव यूज करते हैं। To form the positive, we use a word as before and after the positive form of the adjective. और हम क्या यूज करते हैं, as का वर्ड यूज करते हैं before and after the positive form of adjective. This can also be applied in a negative context to indicate that the compared objects are not similar. और अगर हम not as लगा देंगे तो क्या होगा कि हम ये बता देंगे कि जो दो चीजें हैं ये दोनों सिमिलर नहीं है। Example, he is a good boy. He is as smart as Ali. अब क्या आ गया, वो हम कह रहे हैं कि वो इतना स्मार्ट है जैसा कि अली। He is not a good boy. Now degree of adjectives को हम further देखते हैं, comparative degree. Comparative degree of an adjective denotes a higher degree when compared to a positive degree.
ये पॉजिटिव डिग्री से जब हम आगे की तरफ मूव करते हैं कंपैरिजन के लिए, तो हम क्या यूज करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री। द कंपैरेटिव फॉर्म इज यूज्ड इन केसेस वेयर वी हैव टू शो कंपैरिजन अमंग टू नाउन्स और प्रोनाउन। या हमने किसी दो नाउन या प्रोनाउन के दरमियान कंपैरिजन को शो करना होता है, हम क्या यूज करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। Comparative forms of adjective are formed by adding r, er और more। जब हम पॉजिटिव डिग्री के साथ r, er या more के वर्ड का इजाफा करें तो वो क्या बन जाता है? कंपैरेटिव डिग्री। एग्जाम्पल, ही इज स्मार्टर देन अली। अब हमने क्या कर दिया? दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमने क्या यूज़ किया? कंपैरेटिव डिग्री। हमने स्मार्ट के आगे लगा दिया er तो क्या बन गया? कंपैरेटिव डिग्री ऑफ स्मार्ट। He is taller than me। टॉल के आगे ईयर लगा दिया तो ये क्या बन गया? कंपैरेटिव डिग्री। और हम अब दो नाउन्स के दरमियान कंपैरिजन कर रहे हैं कि he is taller than me। Superlative degree of adjective। The superlative degree of an adjective denote the highest degree of the quality। ये highest degree होती है पॉजिटिव